Hello. Good Hello. morning, sir. Good morning, sir. Okay. I'm extremely sorry for the delay. There was some technical issue. Internet was not working. Fortunately, now everything is fine. Okay, so let us continue with our lecture. We have started with data structure topic and we have completed one board practical exam, right? Sorry, one board practical for a practical exam. Traversing an array. Have you all gone through that program once, at least once? Everyone? Sir. Have you all gone through the notes at least once? I have shared the notes as well in the group. Let me share the screen. Wait. Okay, so we have completed traversing an array program, right? We have completed Yes. inserting an array. Then we have completed deleting an element from an array. Then this was a program that we are supposed to start, right? Bubble sort. Sir. Okay. Actually, I have shared the code with you for bubble sort. We have done the bubble sort program, right? I have shared this much notes to you in the group. So we have done bubble sort program, arranging the elements in ascending or descending order. Do you all remember this? Sir, can you please repeat it in short? Okay, I will repeat it in short. Bubble sort is a technique in which we arrange the element in ascending or descending order. So we are having a list of elements, as you can see in this particular program. I will just go through the program once. This is a second board practical program. Okay, bubble sort. The first board practical program is to traverse an array. So the program follows the steps like this. First, you create and initialize an array of size 10 of float data type. As you can see in this particular statement, float A of 10, and here we are having 10 values, 1.2, 9.2, 7.6. And finally, we are having a T. T will help to swap the elements. Okay. Then we are having two variables, I and J. Then we are displaying the elements of the array before sorting it. Okay, that means we are displaying the element as it is. Okay, as you can see in this particular output, we have displayed the element before sorting 1.2, 9.2 as it is. Okay. After this, we are applying the logic. We are applying the logic over here to rearrange the element in such a way that all the elements are in the ascending order. Okay, and to rearrange the element, we are comparing the first element with the next element, and accordingly we are using two loops, as you can see over here. First is your outer loop, that is for I equals to 0, I less than equal to, sorry, I less than 10 minus 1, 10 minus 1, because we are comparing two values at the same time. Okay, and I plus plus, and inside the inner loop we are using j equals to 0, j less than 10 minus I minus 1, and j plus plus. With the help of these two loops, outer and inner loop, we are executing this particular if statement. Inside the if statement, we are comparing whether a of j, that is the first value, is greater than second value or not. If that is the case, then we are rearranging, that is swapping the value over here, as you can see. With the help of these three statements, ये board practicals the का logic fund to swap the values. Okay, and finally
And finally, we are Sir. getting the array in ascending order. Yes. सर कोई कुछ पूछ रहा था. Any doubt so far, everyone? Sir, when will these board practicals will be conducted? During the time of board exam, generally the period is around in the month of Feb. Sir, और Sir, पहला when will be practical our कौन- college exam? College exams will be online only, as per the given situation. Sir, पहला practical You कौन will सा? get a schedule for the exams. First practical भी कौन है sir? First practical कौन सा? अभी Traversing आपने an बोला array? ना और एक practical और एक है program जो पूछेंगे. तो traversing an array वाला? हाँ sir. Sir, This it was one. said that college will conduct a monthly exam. College will conduct exams. You will get a schedule for that. Don't worry. Okay. So this is our board first practical, traversing an array, in which we have displayed the starting address, starting element with the help of pointer. We have performed the addition. We have displayed the size. Okay sir. Okay. This is a board first practical, and this is a board second practical. Bubble sort. This one. Okay. And finally, we are just displaying the element in sorted order. We have seen that if you want to display the elements in highest to lowest value, then we just have to interchange this condition. Okay, we just have to interchange this. That's it. From greater than to less than. So you will get the element in highest to lowest order values. Okay, fine. So this is our board second practical program, and so far we have completed this much in our data structure chapter. Is it clear so far, everyone? I have shared the notes for this also till page number 34. I hope you have gone through the notes. Yes, sir. Okay, fine. Now let us continue. Wait. Linear search. As you can see in this particular animation given below, you can see that we are comparing 33 with each element in the given array, and we are checking whether 33 is equivalent to that particular value present at that particular position or not. If the value is present at that particular position, it is highlighted with green. That means we have found the location of that particular value in the given array. So using this technique to search for an element in the given array is called linear search. Is it So clear? we all can of you? make this program using loop. Yes, simple. The program is very simple. We just have to read, we just have to create an array. Yes, sir. And, And we have to find that Uh-huh. 33 equals to number. Yes, and we just have to Right. read an element from the user to search from the given array. And we are just supposed to compare that particular element n with each and every element in the given array. If the element is found at that particular index, we just have to display the index that the element is found at this particular location. Okay, clear all of you? Program is very simple. Let us look at the algorithm first. I hope it is clear with this animation Yes. that what we are trying to do in this particular program. Okay. Yes sir, yes sir. So the statement of the algorithm is like this: linear data, comma n, comma item, comma location. LOC is location. Here data is a linear array with n elements, and item is given element. Okay. This algorithm finds the location LOC of item, that is the particular value that we are going to search. Here 33 is an item. Okay. Sir, In the LOC? data, what? LOC क्या है? LOC is a location. अच्छा ऐसा okay. Okay. So we are supposed to find the location of the particular item, that is particular value, in other words. Okay. So we are supposed to find the location of the given item in the data, that is our array of size n. Okay, element is n. Or set location equals to 0 if search is unsuccessful. Suppose that in the given example that you can see below over here. Okay. Suppose that if the value that we are searching is 11. Okay. For example, we are trying to search 11. So can you see, is there 11 value in this particular array? No. No. So in that case, the location value will be 0. Okay. Clear?
Fine. Yes, sir. Okay. Let us understand the algorithm. These are the two solutions again. Okay, solution 1 and solution 2. Whatever solution you are comfortable, you can use it. The solution 1 is with the help of again while loop, and the solution 2 is with the help of for loop. Okay, so let us see the solution 1. Initialize set location equals to 1. Okay, then finally we are searching for the item. Repeat while data of location does not equals to item. Okay, are you getting this part? We are executing the loop while loop till the value at that particular location of the given array data does not equals to item. If the condition is false, then we are incrementing the value of location, that is we are setting the value of location, that is location equals to location plus 1 because the user will see the location as starting from 1 2 3 4, right? Because the user does not understand what an array is. Okay, so for the user to understand the correct location, we are displaying the location as location plus 1. Are you getting, all of you? Suppose that in this particular example, as per the array, the location of 10 is 0, right? Okay, and the 33 is present at 0 1 2 3 4 5 6, right? Yes, sir. Okay, but the layman or the user who is using the program will not understand, okay, will not understand that the value of 33 is at position 7, right? Okay, fine. So for the user to understand that the value is present at position 7, we are displaying the location as location plus 1. We are setting the value of location as location plus 1. This part. Understood so far? Okay. सर वो 7 वाला जनरली एरे कहाँ से स्टार्ट होता है? सर वो तो 0 से होता है। 0. ये हमको पता है क्योंकि हमने एरे के बारे में पढ़ा है. हाँ सर। What about the person who is using your program? उसको पता है कि एरे क्या होता है? ओके। So in that case, we have to display the actual position that the user will understand. ओके ओके, तो इसलिए प्लस इसलिए plus 1. समझा? Okay, very good. So in the step number 3, we are setting the value of location as location equals to n plus 1, and since एल्गोरिदम पूछेंगे वो लोग, algorithm पूछेंगे for linear array. ये नहीं पूछेंगे उसका कोड नहीं पूछा जाता. कोड लीनियर एरे का नहीं आता. हमने देखो कितना सारा प्रोग्राम किया ना बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, उसमें लीनियर एरे का क्वेश्चन था क्या? एक भी सर्च करने का एक भी क्वेश्चन था क्या? नहीं था ना. तो एल्गोरिथम ही आएगा. ओके, the second solution is with the help of for loop for location equals to 0 to n minus 1. We are comparing each element of data at the particular location with the item that we are searching in that particular array. And if the element is present, then we are just displaying the location and exit from the program, exit from the loop. And finally, we are if the element is not present, we are displaying a message element not found. So I guess for loop solution is very simple and straightforward as compared to while loop. So any of the solution you can write in the board question paper if the question is asked to write an algorithm for linear array. Clear? So I will give you all 2 minutes. Please go through both the solutions and understand. If there is any doubt, please ask. Okay. सर ये दोनों सॉल्यूशन एक बार वापस से एक्सप्लेन करूंगे आप? We will see the solution. We will try to understand the solution with the help of C++ program once again. Yes, sir. This will be awesome. Okay. For now, just go through the solution once. स्टेटमेंट्स आपने लिखे हैं वो एक बार एक्सप्लेन करूंगी, मतलब वो एल्गोरिथम. Sure.
तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम C++ प्रोग्राम करेंगे ना, तो और अच्छे से समझेंगे। खाली बस एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो, जितना पार्ट समझ रहा है उतना ठीक है, जो नहीं समझ रहा वो C++ प्रोग्राम से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। हम ये दोनों वे से प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2। फाइन, ओके। Yes, sir. Okay, so I hope you all have gone through the program. Yes, Sorry, sir. gone through the algorithm. Let us understand this algorithm with the help of program. Okay, so here you can see a program using for loop. Okay, the same algorithm for linear search. If we want, we can do the same program using while loop as well. The concept will be same. We just have to break this for loop in the while loop. That's it. Okay, so following C++ program first asks the user to enter the array size, then it will ask to enter the array elements, then it will finally ask to enter the number to be searched in the given array to check whether it is present in an array or not, if it is present at which position. Okay, so you can see over here that we have created an array of size integer. Okay, the size is 10 array.
sorry, of data type integer, the size is 10. I is for our loop, num is for the element that we are going to search, n is a size, c equals to 0. Now why we have taken c, we will see. Then finally, position POS. Sir, Okay, C for what? we will understand in the next part. Acha, okay. Okay. Now we are asking the user to enter the array size. Okay. So we are assuming that user will enter the size less than 10. Okay. Suppose that user enters 5. So we are reading 5 array elements. Okay. Or generally we can ask the user to enter 10 elements as well. We are just trying to take a different approach over here. Okay. Fine. Next, we are asking the user to enter a number to be searched from the given array. Then with the help of loop for I equals to 0, I less than n, I plus plus, we are just incrementing, we are just checking whether if that particular element num is position at that is available at that particular location, that is array of I. Okay, ARR of I, we are checking ARR of I is exactly equals to num or not. Okay. This C is for C equals to 1. We are setting the value of C as 1 so that 1 will indicate whether we have got the array, we have got the number num in the particular array or not. Okay, whether it is available in the given array or not. So we are setting the value of C as 1. Okay. Finally, we are changing the position. POS is a position where we are in which we are storing the position, the actual position of the element. Then with the help of break, we are just coming out of this for loop. Okay. Finally, we are checking whether if the value of C remains to be 0, then the number is not found, else the number is found. And if the number is found, we are just displaying the position of that particular number POS. Clear? Samjha, sir. Okay, it is very simple program. Fine. If you want, I will just execute this program for you. Wait. Let me Yes, copy sir. paste this so it will be easier. We will save our time. सर ये सब आपने शेयर कर दिया ना ग्रुप पे? I have shared till slide 34. Okay. I have shared till this bubble sort. 34. Till slide number 34. Okay. Today we are going to cover linear search, binary search. So whatever topics we will be covering today, accordingly I will share the slide. Okay. Okay, sir. And it will be humble request. So please go through the slide once. Okay. Try to understand, try to make a note. Okay. Try to do the revision from your end at least once. Otherwise, I will go on teaching and you will not understand any of this part. Because at the end, we will be not having so much time to go through each and every topics once again before the exam. Okay. So please spare some time and go through each topics that we are covering in our lecture, so that at the end it does not become a burden for you. Clear, everyone? Yes, sir. Okay. So this is our program. I will save this as C++. I have also shared all the programs as well on the link on the Google Drive. If you all remember, we have created a Google Drive. Do you all remember? We have created a Google Drive link where Yes, I sir. share all the C++ programs. So I have shared all the programs as well. Today's program also I सर will share it. फंक्शंस वाला भी 12th में आता है ना? बोर्ड में वो फंक्शंस वाला जो आपने नोट्स भेजा है वो भी 12th का ही टॉपिक है ना? वो भी 12th का टॉपिक है। बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चंस आएगा आपको। हमने क्वेश्चन सॉल्व किए है ना, क्वेश्चन पेपर देखा था ना, तो उसमें देखो फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन थे, है कि नहीं? याद है? बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखा आप लोगों ने एक भी बार? मैंने लिंक भी शेयर किया था आप लोगों से। नहीं ना? आप लोग कुछ नहीं देख रहे हो।
ये कौन सा प्रोग्राम है? दिस इज लीनियर सर्च. प्लीज रीड द प्रोग्राम, गो थ्रू द टॉपिक्स. ठीक है, वरना एंड में आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी. मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग टॉपिक सब एक्यूमुलेट करते जाएंगे, सब जमा करते जाएंगे कि मैं बाद में पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगी, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का. बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं या कोई भी पूरा रिवीजन करा सके फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. समझ रहे हो? हाँ ठीक सर. है. हाँ, क्योंकि ये सब थियरी नहीं है कि फटाफट 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 स्लाइड घुमाते जाओ. थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है ये. तो इस केस में खाली अगर मैं थियरी पढ़ाऊंगा एंड में ना, तो आप लोगों को कुछ समझेगा नहीं. और ज्यादा और ज्यादा आप लोगों को वो हो जाएगा कि कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया है, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिकल ही नहीं किया है. समझ रहे हो? इसीलिए एक्यूमुलेट मत करो, पढ़ते रहो. अगर जो भी डाउट्स है वो आप लोग पर्सनली पूछ सकते हो. काफी लोगों का मुझे मैसेज आता है, वो लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि सर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसके अंदर ऐसा एरर आ रहा है, सर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसमें ये लाइन नहीं समझ रहा है. सब लोग ट्राई कर रहे हैं अपनी तरीके से, अपनी तरफ से. आप लोग भी ट्राई करो. ठीक है, क्लियर है? यस सर. ओके. सी प्लस प्लस. सर तो ट्वेल्थ के लिए फंक्शन से पढ़ना स्टार्ट करना है हाँ, फंक्शन से पढ़ना स्टार्ट कर दो, एरेज भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एरे रिलेटेड और प्रोग्राम आता है डेटा 12th में. स्ट्रक्चर. ठीक है, तो एरे फंक्शन से स्टार्ट कर दो पढ़ना, और ठीक साथ है. में टीपीएस परचेज कर और लो. डेटा स्ट्रक्चर उसमें ही आता है ना? डेटा स्ट्रक्चर तो एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट हो गया है यार तुम्हारा 12th का, एज पर द सिलेबस. एरे और फंक्शन इसलिए पढ़ना है क्योंकि एरे और फंक्शन तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हारा लेके जाएगा 12th में, प्लस 12th के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में एरे और फंक्शंस के प्रोग्राम्स आते हैं. वो सर तो लिंक एरे. में आपने शेयर किया क्या क्वेश्चन पेपर्स? क्वेश्चन पेपर का लिंक शेयर किया है यार मैंने, हाँ सर है. ग्रुप में ही है वो. ठीक है, इसलिए एक बार ओपन करो, थोड़ा टाइम निकालो. डोंट बी जस्ट डिपेंडेंट ऑन द लेक्चर. लीनियर सर्च. Okay, so hash include iostream.h hash include command.h. Save. Let us execute this. Okay, so it is asking for the size. Suppose the size is, we have entered 6. We are going to enter 6 array elements. Suppose 45, 23, whatever values we are going to enter. Okay, now it is asking for the element to search from the given array. Suppose that if you are trying to search as 67, 67 is present at location 2 as per the topic of array, but as per the normal user it is located at location 3, right? Right. Yes, So the sir. answer is 67 found at position 3. Clear? So that the normal user will understand that okay, 67 is at position 3 because 45 is at position 1, 32 is at position 2, and 67 is at position 3 as per the normal layman user. Okay, but as per the C++ programmer, you know that 67 is at position 2. Okay, clear? So the output should be user friendly. User should understand the program. Okay, user should understand out. Clear, everyone? Yes, So sir. because of that, we have assigned the position value as I plus. Okay, and suppose that if we are trying to search an element which is not available in the given array, suppose the size is 5, we are assigning few values. Okay, and we are trying to search value 10. 10 is not available. So in that case, I will get a message that element not found. Okay, I am getting this message because
because the value of C remains to be 0. Okay, the value of C remains to be 0, and we are comparing the value of C at the end of the loop. Whether C is 0, then the element is not found. If C is not 0, then the element is found. Clear? Let us try one more thing. Suppose the size is 5 and the value that I have entered is 12, 32 and 12 again. Okay. Now, what will be the output if I search for the value 12? फर्स्ट से जाएगा तो 1 ही होगा ना. Okay, so do you think the output will be 1 and or not 3? Should you try? The output is 1 because sir. जी of सर आपने break. ब्रेक यूज किया है ना. Perfect, because of break. So it will search for the value. ठीक है, जहां पर भी value मिलेगा, it will just come out of the loop. Okay, and because of coming out of the loop, it is not searching, it is not executing the loop for the 32, 12, 54 and 65. Okay, so the loop सर is डिक्रीमेंट कर दे तो वैल्यू आता 4. क्या हो गया? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी. सर बोल रहा था डिक्रीमेंट से भी कर सकते हैं ये प्रोग्राम. हाँ, डिक्रीमेंट से भी कर सकते हैं. लूप उल्टा एग्जीक्यूट कर दो, क्या फर्क पड़ेगा अगर डिक्रीमेंट से किया तो? I -1 हो जाएगा. नहीं, मतलब क्यों करना है, मेरा क्वेश्चन वो था. Why to do this program in decrement? कुछ बेनिफिट होगा क्या? आप लोग ऐसा कर सकते हो, i equals to n, ठीक है, i greater than equal to 0 and i minus minus. लो चलेगा, ठीक है, ये लो, कंपाइल, एग्जीक्यूट. 12, ठीक है, अगेन 12. अरे यार 12 तो साइज ही नहीं है, साइज मेरा 10 ही है ना, तो 5 समझो साइज ले लिया. ओके, अब देखते हैं आंसर क्या आता है. फाइन, आई एम सर्चिंग फॉर 12. अब आया 3. क्यों? वाई 3? डिक्रीमेंट क्योंकि उल्टा कॉन्सेप्ट यूज किया ना. वी आर सर्चिंग फॉर द एलिमेंट 12 starting from the end of the array. Okay, starting from end of the array, right? So it is first looking for 12 at position 4, then it is looking for 12 at position 3, then it is looking for 12 at position 2, right? Okay, so अगर तुमने डिक्रीमेंट यूज किया तो इस तरीके से आउटपुट आएगा. सिंपल, प्रोग्राम तो वर्क करेगा ही, मगर क्या ये फिजिबल सोल्यूशन है क्या? एक नॉर्मल जब यूजर देखेगा, ठीक है, नॉर्मल कोई यूजर अगर ये प्रोग्राम देख रहा है तो उसको 12 फर्स्ट पोजीशन पे दिखना चाहिए या 3 पोजीशन पे दिखना चाहिए? फर्स्ट पे दिखना चाहिए. तो सिंपल है, तो इसको नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट करना ही फिजिबल है ना. हाँ Right? सर. प्रोग्राम तो तुम एन तरीके से कर सकते हो. देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशन फॉर एनी गिवन सी प्लस प्लस प्रोग्राम. डिपेंड करता है कि फाइनल आउटपुट कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, फाइनल यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहना चाहिए, डिपेंड वो करता है. ठीक है, चलो मैं फिर से सेम पोजीशन पे लेके चले जाता हूँ. आई प्लस प्लस लेस देन एन, आई इक्वल्स टू 0. सेव. तो हमारा लीनियर सर्च हो गया. ये क्या हो रहा है? ठीक है, अब मुझे ड्रॉबैक बताओ. व्हाट इज द ड्रॉबैक फॉर लीनियर सर्च? क्या लगता है आपको, ड्रॉबैक क्या है लीनियर सर्च का? लॉजिकली सोचो जरा, बताओ कि what can be the limitation or the drawback for linear search if we are searching an element in the given array with the help of linear search method. सर वो एक एक सर्च करेगा. एक एक सर्च करेगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, हाँ. अगर फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू मिल गई, एज्यूम करो, तो परफेक्ट है. बट सपोज द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस. ओके, साइज इज 5 and the elements are 1, 2, 3, 4 and 5, and the number that we are searching is at position 5. Sorry, the number we are searching is 5. So in this case the linear search will search for each and every element, right?
Yes, So the sir. loop will get execute till 5 times, क्योंकि उसको हर एलिमेंट के को सर्च करना है और सर्च करके देखना है कि 5 कौन से पोजीशन पर है, राइट? तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। और आपको क्या लगता है कि क्या ड्रॉबैक हो सकता है लीनियर सर्च पे? सर अगर 2 नंबर दिया है तो जो फर्स्ट आएगा उसी को लेगा। हाँ, वो ड्रॉबैक नहीं बोल सकते। अच्छा, वो तो फिर कंडीशन है। वो तो कंडीशन ही वैसा है ना कि लीनियर सर्च है, पहला एलिमेंट मिल गया, खत्म हो गया। हम नंबर ऑफ ऑकरेंस थोड़ी ना काउंट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि वी कैन स्टोर द पोजीशंस इन एन एरे। ठीक है, एक और एरे बना सकते हैं हम। वो एरे के अंदर हम लोग पोजीशन सारे स्टोर कर सकते हैं और एट द एंड वो एरे को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि द नंबर 12 इज प्रेजेंट एट लोकेशन 1, लोकेशन 3, लोकेशन 5, ऐसा। मल्टीपल। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, हाँ समझा। Suppose if the size is 5 and we have entered 12, ठीक है, 12 again, okay, and 12 again, fine. And if we are searching 12, then we can create an array, okay, which will store position 1, position 3, and position 5. And at the end, the output will be like this: 12 is found at position 1, 3, 5. Understood? समझा? हाँ सर, हाँ। तो बताओ कैसे करेंगे? चलो समझा रहे, चलो बताओ कैसे करेंगे इसको। ये आउटपुट के अंदर ना, ये आउटपुट में आई वांट द 12 फाउंड एट पोजीशंस 1, 3, 1 स्पेस 3 स्पेस 5, या कॉमा भी चलेगा, कोई इशू नहीं। 3 पोजीशन पर है ना 12, राइट? सो तीनों पोजीशन दिखनी चाहिए। चलो बताओ कैसे करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे? सोचो जरा, थिंक। ब्रेक रिमूव कर देते। क्या हो गया? ब्रेक रिमूव कर देते। ठीक है, ब्रेक रिमूव कर देते हैं। चलो रिमूव करने से अच्छा मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, हाँ। कमेंट कर दिया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, लेट अस कंपाइल 5, okay, 12, 32, 12, 43, 12, element to be searched 12। तब तो लास्ट वाला वैल्यू दिया उसने, बरोबर। तो लास्ट का जो है वही सर्च करेगा। Okay. तो लास्ट से नहीं सर्च कर रहा है वो। इट इज गिविंग द लास्ट पोजीशन वेयर दिस पर्टिकुलर 12 इज सर्च्ड। ओके, तो 1 and 3 पोजीशन को स्किप कर दिया उसने, क्योंकि वी हैवंट यूज द ब्रेक। सो ब्रेक यूज नहीं किया, इसलिए पोजीशन का वैल्यू ओवरराइट हो रहा है। इट इज ओवरराइटिंग द वैल्यू ऑफ पोजीशन POS। okay, because the loop is getting executed for each and every value. Okay, it is comparing each and every value with num, that is 12. So finally we are getting the output of has 5, but I want the output to be 1, 3, and 5. So how to achieve that? What changes should I make in this program so that the program should display the output as 1, 3, 5, all the 3 positions where I can see the 12 is present? How we can do that? क्वेश्चन क्या था सर? Question is very simple. Please look at the code over here. Yeah, please look at the output over here. Okay, the element I have entered in the array is 12, 32, 12, 43, and 12, right? These are the 5 values that I have entered in the given array. सही है? हाँ Okay, and the number that I am searching is 12, right? Okay, so the 12 is present at location 1, location 3, and location 5. These are the 3 locations where 12 is present, right? So output में I should get 12 found at positions 1, 3, 5, all the 3 positions. तो ब्रेक हटा दो ना। तो ब्रेक तो हटाया ना, ये क्या है, कमेंट तो किया।
तो 5 आउटपुट आ रहा है ना। सर वैल्यू चेंज हो रहा है उसका। हाँ तो वैल्यू चेंज हो रहा है ना, तो क्या ब्रेक ब्रेक कमेंट क्या इसलिए चेंज हो रहा है वैल्यू? नहीं नहीं नहीं, फिर पहले उसका 1 हो रहा है, फिर पहले वापस 1 हो रहा 3 हो है, रहा फिर है, 3 हो रहा है, फिर फिर 5 5 हो रहा हो है। रहा है। परफेक्ट, मगर मेरे को तीनों चाहिए। मेरे को तीनों आउटपुट में चाहिए। तीनों चाहिए। हाँ, समझ रहे हो क्वेश्चन? हाँ सर। सर तो तो एक काम करना पड़ेगा, वो हाँ जो बोलो, प्रिंटिंग स्टेटमेंट है ना उसको लूप के अंदर लेना पड़ेगा। कौन सा प्रिंटिंग स्टेटमेंट? ये वाला? यस। ठीक है, चलो ले लेते हैं। आउटर लूप के अंदर ले लो उसको। इफ कंडीशन में? नहीं नहीं, उसके नहीं बाद। 12 उसके बाहर? यहाँ पर? हाँ सर। ठीक है, पेस्ट। ओके, लेट अस कमेंट this part now. Okay, fine. यस सर। Okay, let us save this, compile. There is one warning: C is assigned a value that is never used. We can ignore this warning. Okay, let us compile, sorry, execute. 5, so 12, again 12, again 12. 12 we are going to search. So 12 is found at position 1, 12 is found at position 1, 12 is found at position 3. Are you getting? The output is displayed 5 times. Let me show it to you once again. 5, 12, सर हैंडल डाल। हैंडल डाला ना, ये देखो, we are getting 2 बार क्यों 5. आया? हाँ, 2 बार क्यों आया वो नहीं समझा। वही तो समझना है, 2 बार क्यों आया? सर एक बार लूप हो रहा है तो फिर वो क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं। सर एक 1, बार 3 और प्रोग्राम दिखाओ ना। हाँ ये लो। सर वो 32 को भी इसमें 12 में काउंट। कैसे काउंट करेगा यार? कॉमन सेंस किधर है सर तुम्हारा? स्क्रॉल डाउन करो। सर एरे स्क्रॉल का डाउन में साइज कमेंट है, स्क्रॉल डाउन में कुछ नहीं है। हाँ सर, एरे के साइज की वजह से वो नंबर ला रहा है। कुछ भी बोल रहे हो यार तुम लोग, कुछ भी बोल रहे हो, मतलब क्या है? सो के उठ के ऐसे बैठ गए क्या लेक्चर चालू करेंगे? अरे सर ये सब इसीलिए ऐसा सब आंसर दे रहे हो ना, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तुम लोग लेक्चर बैठ रहे हो, फिर बाद में अपना बाकी जो भी है सर फिजिक्स पोजीशन केमिस्ट्री का में सब वैल्यू क्या रीसेट ऐसा कुछ करना पड़ता है क्या? रीसेट क्यों करना पड़ेगा यार? कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन अगर जब कोड एग्जीक्यूट करते हो तुम, ठीक है, फॉर लूप जब एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हो रहा है फॉर i इक्वल्स टू 0 के लिए, तो जब वो चेक कर रहा है कि 12 प्रेजेंट है कि नहीं, तब तो प्रेजेंट है ना फर्स्ट टाइम के लिए, राइट? हाँ जब सर। फर्स्ट टाइम चेक करेगा प्रेजेंट है, राइट? तो हाँ वो इफ के बाहर जो तुमने स्टेटमेंट लिखा है वो डिस्प्ले कर दिया उसने, यस सर। हाँ ओके। अब जब सेकेंड टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा फॉर वैल्यू 1, ओके, जब वैल्यू 1 के लिए लूप एग्जीक्यूट होगा तो एरे 1 पे जो 32 वैल्यू है, राइट, हाँ सर वही बोल रहा बराबर। मगर जो तुम्हारा ये स्टेटमेंट है हूँ। वो फिर से वो तो रिपीट होगा। इफ के बाहर है ना भैया, हाँ तो ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट शो होगा ही ही ना। होगा ही। समझ रहे हाँ हो? सर समझ गया तो उसको समझ अंदर लेना पड़ेगा ना। वही तो बोल रहा, कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा, इसलिए मैंने पहले पूछा था अंदर लिखो कि बाहर। ठीक है, चलो अच्छी बात है, गुड। हम लोग जब मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, है कि नहीं? तो यस अभी सर। हमने अंदर लिख दिया।
ओके सर अब लेकिन जब मुझे वो नहीं समझा, पोजीशन का वैल्यू फिर वो लोग 1 क्यों दिखा रहे थे सेकंड टाइम? वो अरे क्योंकि सेकंड टाइम सर माइक म्यूट हो गया। क्योंकि सेकंड टाइम में पोजीशन का वैल्यू चेंज ही नहीं हुआ था, इट वाज 1 ओनली, फॉल्स होने की वजह से हाँ कंडीशन। लूप के बाहर था ना इसके वजह यस से। यस यस राइट सर। जब चेंज ही नहीं हुआ, अपडेट ही नहीं हुआ, तो कैसे अपडेट करेगा वो? मगर तुम ये ऑब्जर्व करो तो देखो, जब थर्ड स्टेटमेंट आ रहा है तो उसमें 3 आ रहा है ना। हाँ सर 3 कैसे आ रहा है? क्योंकि उस वक्त क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई थी ना तुम्हारी, हाँ सर। तो पोजीशन का वैल्यू चेंज हुआ। समझ गए? यस सर। तो अभी हमने इफ के अंदर लिख दिया, ठीक है। नाउ लेट अस हाँ सर। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। 5 12 32 45 12। चलो ठीक है, पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया, फर्क नहीं पड़ता। वी आर सर्चिंग 12, so 12 हाँ founded परफेक्ट। position 1, 12 founded position 4। क्लियर? यस सर। समझा? हाँ अभी सर। इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होगा। समझो, मान लो, ठीक है। मुझे ना ऐसा बार बार आउटपुट नहीं चाहिए। ये जो स्टेटमेंट कंपाइल कर दिया यार मैंने, हाँ, ये जो बार बार स्टेटमेंट आ रहा है ना, 12 फाउंडेड पोजीशन 1, 12 फाउंडेड पोजीशन 4, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। 1,4 ऐसा। हाँ, 1 स्पेस 4 या कॉमा 4 या कुछ भी ऐसा, मतलब सिंगल लाइन चाहिए मुझे। ओके वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? वैसे बहुत सिंपल सोल्यूशन सर है। एक ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं कि जिसमें कैसा वो जो वेरिएबल? फाउंड हो रहा है कि जो जिस एरे के एड्रेस पे वो आ रहा है, तो वो दो वैल्यू उससे सेव हो जाएगा उस वेरिएबल को, फिर उसको आउटपुट में हम लोग लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो ऐसा वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती है? ऐसे वेरिएबल को कौन सा वेरिएबल कहते हैं जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती है? अरे एरे। तो चलो एक एरे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। पी करके एक एरे बना लेते हैं जिसके अंदर पोजीशन स्टोर करेंगे। इसका साइज क्या रखें? 10 से तो ज्यादा होगा नहीं ना, क्योंकि जब नॉर्मल जो एक्चुअल एरे है उसी का साइज 10 है, हाँ सर। राइट ना? उससे ज्यादा तो होगा नहीं, राइट? यस। सो 10 ले लिया। अब चलो पी को कैसे यूज करें जो एरे बनाया हमने, बोलो। यूज कैसे करें? We have created an array P of size n which will store all the positions, okay, which will store all the positions where the value is found, where the num is found, okay. So how we will use this P? सोचो। हाँ सर वही सोच रहा हूँ। हाँ सोचो सोचो, आराम से, टेक ए टाइम, कोई इशू नहीं है। सर तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, उसको स्टोर कर देंगे, मतलब जो भी पोजीशंस है ना उसको हम लोग एरे के अंदर स्टोर कर देंगे, और फिर जैसे ही खत्म हो गया ना हम लोग उसके जो एरे ना पी का उसका इंडेक्स इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो वो स्टोर करने के लिए स्टेटमेंट क्या लिख? ब्रेक को हटा ही देता हूँ, जरूरत नहीं है उसकी। तो स्टेटमेंट क्या लिखूं? हमें पोजीशन मिल गया POS, पी ऑफ ठीक आई है। इज इक्वल टू पोजीशन, ऐसा कुछ होगा ना सर? P of I equals to position equals to POS, राइट? नहीं सर, बट मेरे हिसाब से ऐसा होगा। ठीक है, हम ये स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं ना, ठीक है। हम सब लोग मिल करके ये स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि ये स्टेटमेंट फिजिबल है कि नहीं। ओके चलो अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर नहीं आएगा, राइट? क्योंकि हमें इंडिविजुअल तो प्रिंट नहीं करना हाँ सर। है कि नहीं।
हमें तो डायरेक्टली प्रिंट करना है, तो उस केस में ये स्टेटमेंट जो अपना इफ वाला पार्ट है वो इफ वाला फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है ना? और यहाँ पर पीओएस नहीं आएगा, यहाँ पर मेरा एरे आएगा। ओके, तो इसके अंदर मेरे को लूप यूज करना पड़ेगा, है ना? सारे पोजीशन को डिस्प्ले करने के लिए लूप यूज करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? Yes, sir. ओके, क्योंकि अभी सारे वैल्यूज तो मेरे पी के अंदर है पोजीशंस, तो मेरे को पी के सारे वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए लूप यूज करना पड़ेगा। चलो चलो एनालाइज करते हैं इसे, ठीक है? अब as per this output, okay, as per this output, the POS is the positions are 1 and 4, right? Right now, Yes, sir. as per this output, the value of POS is 1 and 4. Now, suppose that if we are storing the value of POS at position P of I, in that case, the 1 and 4, the values 1 and 4 will be stored at position 0 and 3. हाँ सर। समझा? समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि सर देखो तो क्या P of I plus 1 डालना पड़ेगा क्या? तो वो 1 और 4 पे स्टोर हो जाएगा। व्हाट अबाउट द 2 and 3? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने क्या बोला? देखो देखो देखो, सुनो सुनो। नहीं, आउटपुट क्या, पहले समझ तो लो। आउटपुट के लिए अभी तक तो हम समझे ही नहीं कि उसको यूज कैसे करने वाले। ये आउटपुट के लिए तो डिस्प्ले करना पड़ेगा ना मुझे। ये अरे भी अरे मुझे तो लूप में लिखना पड़ेगा ना, पी ऑफ आई बराबर। सर, हाँ। हाँ, तो पहले पी ऑफ आई के अंदर वैल्यू तो स्टोर करो, तब आउटपुट डिस्प्ले करोगे ना भाई। हाँ ठीक है, तो पहले वही हमारा एनालिसिस चालू है कि वैल्यू स्टोर कैसे होगा। ओके, सो as per this statement, what will happen? As per this input, what will happen? Let us understand this. The value at P of 0, okay, will store 1. Okay, fine, है ना? As per this output, P of 0 के ऊपर 1 आ जाएगा ना? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, but what about P of 1? यहाँ पर क्या स्टोर होगा? What about P of 2? वहाँ यहाँ पे पर क्या 1 स्टोर पे होगा? 2 स्टोर होगा ना और 2 पे 3। अरे कैसे स्टोर होगा यार? 1 पे तो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी ना। हाँ सर, 1 पे नहीं जाए, सही है। अरे 1 पे तो 12 है ही नहीं, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। जब कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा तो P of तो 1 पे कौन सी execute ही वैल्यू नहीं आएगी? आएगी ही नहीं, नहीं राइट? आएगी। सो डायरेक्टली फिर आएगा P of P of 3। P of 3 के ऊपर तुम्हारा 4 स्टोर होगा, हाँ सर। राइट? सो Yes, जब sir. हम लोग ये P प्रिंट करने जाएंगे यहाँ पर नीचे पोजीशन के लिए, जब हम लोग P of I प्रिंट करने जाएंगे तो उस केस में हमारा आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि P of 1 और 2 के ऊपर तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, Yes, sir, तो not equal। राइट? हम्म तो हम लूप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे फिर प्रिंट करने के लिए? है ना? समझ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? हाँ सर। तो सोचो जरा, क्या ये एरे लेकर ही करना फिजिबल सॉल्यूशन है या कोई और दूसरा अप्रोच हो सकता है? अगर स्टेटमेंट्स को ही हमने, ये जो सी आउट स्टेटमेंट है, इसको ही हमने कुछ ऐसे तरीके से प्रिंट किया कि हमें सारा पोजीशन एक के बाद एक आ जाए, तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा है ना 12 फाउंडेड पोजीशन, तो ये सी आउट स्टेटमेंट है, राइट? ठीक है, तो ये सी आउट स्टेटमेंट को हम ऐसी जगह लिख दे कि सी आउट स्टेटमेंट एक ही बार आए और पोजीशन जितना आना है उतनी बार आ जाए, विद स्पेस और विद कॉमा। हाँ सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इजी हो जाएगा ना?
तब इजी हो जाएगा, इतना सब कुछ हाँ नहीं तो करना जरा पड़ेगा। सोचो कैसे कैसे पॉसिबल है। सी आउट स्टेटमेंट को हम कहाँ पे लिख दे कि जो 12 फाउंडेड पोजीशन जो 2 बार आ रहा है वो एक ही बार आ जाए। तो ये सोल्यूशन तो मेरे ख्याल से फिजिबल नहीं है, राइट? तो इसको निकाल देते हैं। ओके, कंफ्यूजन नहीं रखते। फाइन, यस। ठीक है, चलो इसको निकाल देते हैं। वैसे सोल्यूशन फिजिबल है मगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप लोग चाहिए तो सोचना इसके बारे में कि कैसे पॉसिबल है। मेरे को पता है कैसे पॉसिबल है, मगर आप लोग जरा सोच के सोल्यूशन लेकर आओ। विथ एरे भी पॉसिबल है ये, मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर दें। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम था। यहाँ पर था ब्रेक, जिसको हमने कमेंट किया था, ठीक है। और हमें ये पी नहीं चाहिए। चलो, ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम। ओके, चलो अब बताओ कि ये सी आउट स्टेटमेंट को कैसे लिखे, कहाँ पर लिखे कि हमें सारा पोजीशन परफेक्टली डिस्प्ले हो जाए। एंड ये जो स्टेटमेंट है 12 फाउंडेड पोजीशन वो एक ही बार है। ठीक है, सोचो। ये तो चलो रीडिंग ही है, इतना पार्ट तो समझाइए। ऊपर वाला जो भी लॉजिक है वो यहाँ पर है ना, इतने में ही। तो इतने में ही जो करने क्या करने का तुम। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने बोला क्या कैसे सॉल्व करना है? मैंने कोई सोल्यूशन नहीं बताया है, आप लोगों को सोचना है सोल्यूशन कि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट 12 फाउंडेड पोजीशन एक ही बार आना चाहिए, 1 स्पेस 4 या 1 कॉमा 4 करके पोजीशन डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे? सर वो जो सेकंड वैल्यू आएगा ना, थर्ड वैल्यू, हाँ, उसको है ना मेरे हिसाब से तो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, और फिर साथ में वो अलग अलग वेरिएबल्स को प्रिंट करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, इतना इतना कॉम्प्लिकेट ज्यादा लंबा हो सर जाएगा। बिकॉज कितना वेरिएबल और कोई बनाएंगे यार हम मेथड आ लोग? ही नहीं रहा है दिमाग में। कितना वेरिएबल बनाएंगे हम लोग? समझो अगर ये प्रोग्राम तो छोटा साइज का ना, साइज 10 है, व्हाट अबाउट अ प्रोग्राम व्हिच विल हैव अ साइज 100, 200, 1000, 1 लाख, सर 1 तो करोड़, तो क्या एरे ही करेंगे? एक मेथड है, और कौन सा अरे method? यार कुछ भी बोल रहे हो यार, सच में तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो अच्छी तरीके से। अगर ये मैंने स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है, कॉपी किया, ये कमेंट कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। सर कोई इतना कुछ इजी बोला सोल्यूशन है? है ना, मैं सोल्यूशन बताऊंगा ना तो तुम लोग अपने आप पे हंसोगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये पोजीशन मैंने हटा दिया और यहाँ पर ब्रेक के बदले मैंने लिख दिया सी आउट, POS, सी आउट स्पेस, अरे ठीक है, ये लो। हाँ सर, हो गया। 5, 12, 32, 43, 12, 12, ये लो। एलिमेंट टू बी सर्च 12 आ गया ना? आया अरे ना? हाँ सर, मैं बोल रहा था इतना इजी सोल्यूशन है, मैं बताऊंगा आप लोगों को तो आप लोग हंसोगे अपने आप पर दो कि क्या स्टेप स्टुपिडिटी करना है। सिंपल सा सोल्यूशन था, बस खाली जो ये स्टेटमेंट आप लोगों ने इफ के अंदर लिखा था, यू हैव रिटन दिस स्टेटमेंट इनसाइड द इफ, राइट? दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा था इफ में। खाली बस फॉर के बाहर लिखना था तुमको ये, बस, और क्या था? इतना सिंपल सोल्यूशन था ये।
ना एरे की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, सारा वैल्यू तुमको दिखाई देता है। इसीलिए कॉमन सेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग, सही है। समझे? यस सर। सर प्रोग्रामिंग का मेन रीजन ही मतलब मेन बैकएंड में ये सब चलता रहता है कि तुम किस तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो अपना कॉमन सेंस ऑन रखो, ठीक है? क्लियर है एवरीवन? यस सर। हाँ सर। सिंपल, ठीक है, फाइन। सो लेट अस सेव दिस और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये? हाँ ठीक है। सो लीनियर एरे का हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। तो हमने लिमिटेशन, वी हैव सीन द लिमिटेशन ऑफ लीनियर एरे। ओके, सपोज एलिमेंट बहुत ज्यादा है या बहुत प्रॉब्लम है तो उसको वो हर एक वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा तो हमारा टाइम वेस्ट बहुत होगा। ओके, सो टू ओवरकम द लीनियर एरे, to overcome the limitation of linear array, linear search, we are going to study binary search. Okay, so यस सर। स्टेप बाय स्टेप पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि बाइनरी सर्च क्या है, क्यों यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसका भी आप लोगों को एल्गोरिदम आएगा, एल्गोरिदम आ सकता है प्लस एल्गोरिदम एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है कि एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो, और या तो प्रोग्राम आ सकता है। प्रोग्राम मेरे ख्याल से मोस्टली नहीं आएगा, इसका प्रोग्राम आपको बोर्ड प्रैक्टिकल में है। ओके, सो दिस इज अवर थर्ड बोर्ड प्रैक्टिकल प्रोग्राम। फर्स्ट कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट बोर्ड प्रैक्टिकल प्रोग्राम? ट्रांसवर्सिंग। Traversing an array. Okay, traversing an array with the help of pointer. Okay, ये फर्स्ट बोर्ड प्रैक्टिकल प्रोग्राम था इन विच वी वर डिस्प्लेइंग द एड्रेस, साइज, ओके, एंड द सम विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। क्लियर? सेकंड बोर्ड प्रैक्टिकल वाज डबल शॉट। bubble sort, in which we were arranging the elements in ascending or descending order depending upon the requirement. Okay, and the third board practical is binary search. Binaries. Clear? Okay, so let us understand first the theory part. So binary search is used to search an element from sorted array. Okay, this particular line is the most important line in binary search, that to apply the binary search technique, the array should be in sorted order, whether it can be in ascending order or it can be in from largest to smallest. Okay, whichever order, it should be in sorted order. Clear? Okay, इसीलिए हमने बाइनरी सर्च के पहले बबल सॉर्ट पढ़ा। समझ गए? क्लियर है? बिकॉज वी नो द टेक्निक ऑफ सॉर्टिंग एन एरे। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। Okay, so the first and most important line for binary search, I will repeat once again for you, that the binary search is used to search an element from sorted array. यानी array sorted होना चाहिए, random value होगा then the binary search will not work. Okay, अगर random value होगा तो linear search better है। Okay, और अगर sorted array है, चाहे वो ascending हो या descending हो, the binary search is the most efficient technique. Clear, everyone? So the first and foremost requirement and the most important requirement for binary search technique is the array should be in sorted order. Clear? Clear है सबको? Yes, sir. चलो, let us understand the next part. Binary data, LB is lower bound, UB is upper bound. अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा LB UB क्या होता है। Item is the number that we are going to search. Then location is a location at which the value will be there. Okay, your data is a sorted array with lower bound LB, upper bound UB. Item is given element. BEG is denotes the beginning, MID denotes the middle, and END denotes the end. अब ये BEG, END, MID क्या है?
ये सब हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी, ठीक है। नाउ दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन LOC ऑफ आइटम in data or sets location as null or zero if the search is unsuccessful. Clear? Okay, statement clear है, इसमें से कुछ पार्ट नहीं समझा होगा, that is BEG क्या है, MID क्या है और END क्या है। Okay, yes, तो हम लोग sir. समझेंगे, don't worry, बाकी पार्ट क्लियर है। हाँ सर, हाँ। ठीक है। Next, advantages. The binary search technique is efficient as the search scope gets reduced to half the size of the array with each iteration. बहुत ही भारी भारी वर्ड्स है, ठीक है, मगर बहुत ही सिंपल। फाइन, स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं। लोग क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्या एरे को? परफेक्ट परफेक्ट, स्टेटमेंट का मतलब ही वही है, दैट इट इज एफिशिएंट बिकॉज हर बार जितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा वो पूरे एरे को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करता जाएगा। तो आप सोच लो कितना इजी हो गया ना ये। MID मतलब एवरेज वैल्यू निकालते हैं क्या वो लोग? मिड वैल्यू निकालते, हाँ, ओके, मिड वैल्यू निकालते। तो हाफ में जब डिवाइड होगा ना तब उसके अंदर पोजीशन चेंज हो जाएगा एरे का। मिड वैल्यू तो से जो कंपेयर करेंगे वो हाँ, लोग, तो ज्यादा है मिड कि कम वैल्यू, है? परफेक्ट, मिड वैल्यू के ऊपर जो आइटम है वो कंपेयर करेगा कि मिड वैल्यू पोजीशन जो है ना, मिड MID, उस पोजीशन के ऊपर आइटम जो वैल्यू एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं वो ढूंढेगा। इसके अंदर वो आई यूज नहीं करता, समझ गए? बाइनरी हाँ। सर्च में आई का यूज नहीं होता, बाइनरी सर्च में मिड का यूज होता है। और मिड कैलकुलेट करने के लिए BEG और END का यूज होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एरे ब्रेक हो रहा है हाफ हाफ में। ओके, यस सर। थोड़ा थोड़ा समझिएगा, डोंट वरी, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ओके, आई विल रीड द स्टेटमेंट वंस अगेन। Binary search algorithm is efficient as the search scope get reduced to half the size of array with each iteration. तो जितनी जितनी बार मेरा आइट्रेशन होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा, मेरा जो स्कोप है जहां पर एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ, ढूंढना है मुझे, वो स्कोप हाफ हाफ से रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट ढूंढना आसान हो जाएगा क्योंकि बाकी हाफ में वो सर्च ही नहीं करेगा। ओके, आइदर इट विल सर्च इन द फर्स्ट हाफ और द सेकंड हाफ, डिपेंडिंग कि वो एलिमेंट जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। समझ गए? ठीक है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ना एरे। फर्स्ट लाइन देखो, यस, फाइन, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं आइदर वो फर्स्ट हाफ में होगा या सेकंड हाफ में होगा, राइट? है कि नहीं? सर तो लोग मिड वैल्यू निकाल के कंपेयर करेंगे, अगर मिड ज्यादा वैल्यू हुआ निकाल तो के कंपेयर सेकंड हाफ में करेंगे। होगा। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन पे जाते। आई होप फर्स्ट एडवांटेज क्लियर हो गया होगा सब। ओके, और वो फर्स्ट एडवांटेज तो मैं थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि मिड क्या है, बिगिनिंग क्या है और एंड क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। Second advantage, the number of comparisons required are approximately equal to log n raised to 2 which are less than linear search. तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, कि इतना नंबर ऑफ लूप्स एग्जीक्यूट होगा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम इतना नंबर ऑफ टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा, डिपेंड करता है कि कहाँ पर वो पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट। क्लियर? ओके, वैसे कोई फॉर्मूला तुमको प्रूव करने के लिए पूछेगा नहीं, बस एक फॉर्मूला है, याद रख। क्लियर? एग्जाम में अगर आ गया तो एडवांटेजेस लिख सकते। कोड में यूज होगा क्या वो फॉर्मूला? नहीं, फॉर्मूला कोड में यूज नहीं होगा, कोड में खाली BEG, MID और END इतना यूज होने वाला। ओके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस, बाइनरी सर्च का डिसएडवांटेजेस भी है ऑफ कोर्स। ठीक है, द एक्सेस ऑफ लिस्ट मस्ट बी रैंडम, मींस द मिडल वैल्यू कैन बी एक्सेस्ड। ये क्या है, क्या बोल रहा है ये? क्या बोलना चाह रहा है ये? समझा नहीं सर। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ दो, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सेकंड और थर्ड, हम लोग प्रोग्राम देखते हैं तो थोड़ा सा समझेंगे। ठीक सेकंड है, और थर्ड समझा, पहला हाँ, नहीं। कि गिवन लिस्ट मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर एंड थर्ड वन इज एच ईच आइटरेशन मिडल एंट्री कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। तो जो MID की वैल्यू है उसका कैलकुलेशन हर आइटरेशन के ऊपर रिक्वायर्ड है। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, एक बार प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तब समझेंगे।
ठीक है, मुझे जैसा लग रहा है कि ना फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट द एलिमेंट शुड नॉट बी इन रैंडम ऑर्डर, मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है, मगर थोड़ा लिखने का तरीका अजीब सा हो गया। चलो आगे देखते हैं। सो दिस इज अवर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। एग्जाम में मोस्टली थियरी पेपर में मोस्टली एल्गोरिदम आएगा बाइनरी सर्च का, और आता भी है। वो बोलते हैं कि एल्गोरिदम एक्सप्लेन करो बाइनरी सर्च विथ एग्जांपल। सो वी हैव टू यू हैव टू टेक सम वैल्यू, ठीक है, कुछ 5-10 वैल्यू लेकर के, एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप, और आप लोगों को बताना है कि बाइनरी सर्च उस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज के साथ कैसे वर्क कर रहा है। क्लियर है? ओके ये पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है बुक के अंदर। तुम अगर टीपीएस पढ़ोगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा सेम सोल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। टीपीएस तुम्हारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही है पूरा बुक ही, अगर जिसने लिया है, जिसने ओपन करके देखा है तो उसको पता होगा। ओके अगर है तुम्हारे पास तो अभी ओपन करके देख लो बाइनरी सर्च वाला टॉपिक कैसे दिया हुआ है। फाइन, तो एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करे, सब लोग साथ में हैं? यस हाँ सर। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, एक काम करते हैं, एल्गोरिदम को है ना हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी करते जाएंगे। साथ में ना मैंने एग्जांपल भी दिया है कि हाउ द बाइनरी सर्च वर्क्स। ये एग्जांपल को भी एक एक स्क्रीनशॉट के साथ समझते जाएंगे। ओके तो ये हमारा फिर प्रोग्राम आ जाएगा प्रैक्टिकल वाला। सो हम क्या करने वाले हैं कि पहले एल्गोरिदम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं एक एक करके, और उसको यहाँ पर जो टेक्निक है, ये जो स्क्रीनशॉट्स है उसमें अप्लाई करते हैं। ओके ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। तो ये सेम एग्जांपल आप लोग फिर बोर्ड के थियरी पेपर में भी दे सकते हो अगर आ गया तो। ओके चलो पहला स्टेटमेंट, सेट बीईजी इज इक्वल टू लोअर बाउंड ईएनडी इज इक्वल टू अपर बाउंड स्टार्टिंग में। ठीक है, लोअर बाउंड क्या होता है एरे का? जब एरे स्टार्ट होता है तो लोअर बाउंड क्या आता है जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो? फर्स्ट एलिमेंट। लोअर बाउंड, फर्स्ट एलिमेंट नहीं, लोअर बाउंड इज अ पोजीशन। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड इज अ पोजीशन, नॉट अ वैल्यू। ओके लोअर बाउंड 0 होगा। लोअर बाउंड 0 होगा, अपर बाउंड क्या होगा? सर अभी के लिए तो n बना सकते हैं, बाद में वैल्यू जो स्टोर करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। in simple Size. words we can say size minus 1। सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं ना साइज माइनस 1। जो भी Yes, एरे का sir. साइज है, समझो साइज n है तो n माइनस 1। ठीक है, साइज अगर 10 है तो Yes, 10 माइनस 1 दैट इज 9। ओके सो जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब बीईजी की वैल्यू 0 रहेगी और ईएनडी की वैल्यू जो भी साइज रहेगा -1 रहेगा। क्लियर? ओके और हम लोग फर्स्ट मिड कैलकुलेट करेंगे, MID इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ बीईजी प्लस n डिवाइडेड बाय 2। ओके एक काम करो, अपने हाथ में बुक ले लो, पेन ले लो, और ये स्टेटमेंट लिखो, वैल्यू एज्यूम करके लिखो। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या वैल्यू आ रहा है समझो पहले। ठीक है, सब लोगों ने बुक पेन ले लिया? ढूंढ लो, देखो कहीं ना कहीं होगा, किसी कोने में पड़ा होगा। हाँ सर। हाँ ठीक है देखो देखो, मतलब मम्मी से पूछो, मम्मी के पास सब कुछ होता है। ओके घर पर ही हो आई होप आप लोग मिल गया सबको? हाथ में मत लिखना है, ठीक है? देखो एक लेफ्ट हो गया, लगता है दुकान में गया लेने के लिए ओके ले लिया बुक और पेन? हाँ सर। ठीक है वेरी गुड। चलो अब एक एरे बनाओ। ठीक है, एरे का नाम रखो A, साइज रखो 10, A of 10। ओके एरे बना दिया सबने? हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे, हम खाली बस एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो एकदम हैश इंक्लूड वगैरह वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। ओके खाली बस एक बुक में बाइनरी सर्च ऐसा टॉपिक डालो ऊपर, और बाइनरी सर्च को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। वेरिएबल्स कैसे काम कर रहा है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 जन चले गए, 2 जन गए बुक लेने के लिए। ठीक है क्लियर? क्लियर हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर? हाँ सर।
ओके वेरी गुड। तो सब लोग रेडी है, सब लोग एक साथ है, कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए, यहाँ से दिखाई नहीं हाँ दे रहा सर। मुझे कुछ भी। ठीक है, आप लोग जो बोलोगे वही सही है मेरे लिए। फाइन। सो एक एरे ले लो ए जिसका साइज है 10। ठीक है, तो उस हिसाब से जो साइज 10 है उस हिसाब से बीईजी का वैल्यू क्या होगा? 0। 0। वेरी गुड, लिख दो लिख दो, बीईजी इक्वल टू 0। ठीक है, ईएनडी का वैल्यू क्या होगा? हेलो सर। 9। हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है तुम्हारी आवाज, बोलो। हाँ सर, ओके ओके। हाँ ठीक है, माइक टेस्ट कर रहा था ये मेरे साथ। अरे ठीक है, नहीं सर, आप कब से बोल रहा था, आवाज ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं। ठीक है, बीईजी इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट? ओके, ईएनडी क्या हो जाएगा? 9। 9। वेरी गुड, परफेक्ट, लिख दो 9, ईएनडी 9 लिख दिया। यस सर। ठीक है, अब एमआईडी की वैल्यू कैलकुलेट करो। एमआईडी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है? तो बीईजी क्या है? 0। 0। 0 प्लस 9 4। डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर आएगा? 4। 4। 4। आंसर 4.5 आता है टेक्निकली हाँ, जब आप लोग लेकिन मैथ्स 4 का डिवाइड आएगा। करोगे, मगर यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लेंगे तो आंसर 4 आएगा, 5 नहीं पर होगा। सर स्टार्ट से बोलो ना क्या क्या लिखना है। अरे क्या स्टार्ट से बोलो, फिर से बोल देता हूँ भाई, स्टार्ट से। एक एरे हमने बनाया ए ऑफ 10, ठीक है? वो ए ऑफ 10 के हिसाब से बीईजी का वैल्यू 0 होगा, ठीक है? ईएनडी का वैल्यू 9 होगा, ठीक है? और एमआईडी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एमआईडी इज इक्वल टू 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4.5, दैट इज 4, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए। समझा? हाँ सर। ओके, अब यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि सर 4.5 क्यों नहीं ले रहे, और 4.5 को हमने 4 क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया, राइट? ये क्वेश्चन है कि मेरे को हाँ ही क्वेश्चन सर, आ रहा है खाली बस ये? इंटीजर है ना सर, आपने इंटीजर डेसिमल है तो इंटीजर के केस में, हाँ इंटीजर के केस में डेसिमल पार्ट स्किप हो जाता है, ठीक है? तो 0.5 ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा, तो वहां पर 4 हम कंसीडर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होता अपर वैल्यू में, तो 5 नहीं आएगा। समझ गए? क्लियर है? वो रियल लाइफ में होता है मैथ्स वगैरह में, Yes. अपने प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग में होता है मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मगर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा मेरा मिड का वैल्यू क्या आएगा? 4। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबका हो गया करके? हाँ सर। इतना पार्ट लिख के हो गया, चलो वेरी गुड। अब एक काम करो, उसके नीचे ही एक बॉक्स बना दो अच्छे से, मतलब एक एरे कैसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है? ए ऑफ 10 लिया है ना तुमने, राइट? तो 10 बॉक्सेस बना दो। 10 बॉक्सेस बनाने के साथ साथ पोजीशंस लिख दो, 0 1 2 3 4 टिल 9, और हर पोजीशन के ऊपर ना वैल्यू लिख दो। सब लोग कॉमन वैल्यू लिखो अभी के लिए, ताकि सब लोग साथ में समझे उसको। ये वाली वैल्यू लिख दो, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया है ना वैल्यू 10 14, ऐसा बॉक्स बनाओ, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? सर सेम ऐसे बनाए। सेम ऐसे ही बनाओ, ताकि ये एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा ना अपने को, ओके इसीलिए, ओके सर। ठीक है? तो एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा, एल्गोरिथम भी समझ में आ जाएगा। सर हो गया। ओके, तो आई होप सब लोगों ने बना लिया होगा ये। तो ऐसा सिंपल सा बॉक्स बना देना है, 10 बॉक्स होने चाहिए इनसाइड द 10 बॉक्सेस। इंडेक्स स्पेसिफाई कर दो बिलो द बॉक्सेस, दैट इज 0 to 9, एंड इनसाइड द बॉक्सेस जो भी वैल्यूज है 10 14 19 26, वो सब वैल्यूज असाइन। क्लियर? सबका हो गया रेडी? आप लोग का हो गया तो चैट में लिख सकते हो आप लोग, यस नो थम्स अप, एक सेकंड। ठीक है? हम सबको मिलके समझना है एल्गोरिथम, ठीक है? इसीलिए सब लोग साथ में लिखेंगे, साथ में एग्जीक्यूट करेंगे, साथ में स्टेप बाय स्टेप
कंपाइल करेंगे। हो गया सबका, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, और हमें जो फाइंड आउट करना है ना वो 31 है। ओके, हम जो वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो 31 है। तो एक वेरिएबल ले लो NUM करके, ठीक है, NUM या N करके जो भी आपको लेना है। तो एक N नाम का वेरिएबल ले लो जिसके अंदर 31 स्टोर कर दो, क्योंकि हम लोग वो N को कंपेयर करेंगे मिड के साथ। समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो N इक्वल टू 31 लेके रखो। फाइन, चलो इतना हो गया। अब एल्गोरिथम में फिर से आते हैं। सेकंड स्टेप, ओके, एल्गोरिथम का सेकंड स्टेप, रिपीट स्टेप 3 और एंड n को 4। 31 क्यों, वो वाला बताओ। अरे क्योंकि हम 31 ढूंढ रहे हैं बाइनरी सर्च यूज करके। ओके राइट। आप लोग कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, 33 ले लो, 35 ले लो, कुछ भी ले लो, मगर अभी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 31 लिए हैं, क्योंकि ये पूरा एग्जाम्पल 31 के साथ वर्क कर रहा है। समझ गए? एक बार ये समझ गए आप लोगों को, तो आप लोग सेम स्टेप्स 33, 35, 10, 14 जिसके लिए चाहो उसके लिए एग्जीक्यूट कर लेना। क्लियर है? ओके, समझा? अरे यस नो बोलो, कुछ समझा कि नहीं समझा? यस सर। ठीक Yes, है, sir. वेरी गुड, फाइन। सो यहाँ तक सबका क्लियर है। अभी एक चीज नोटिस करो, हाँ, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में ही सारे वैल्यूज है। नोटिस किया आप लोगों ने? हाँ सर। है ना? 10, 14, 19, 26 सारे वैल्यूज देखो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, रैंडमली कुछ भी वैल्यू नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 2 क्या बोल रहा है कि रिपीट स्टेप 3 and 4 while BEG is less than equal to AND. Okay, while BEG is less than equal to and data of mid does not equals to item. ओके, अब ये कैसे लिखोगे अपने बुक में? बुक में आप लोग ऐसे लिखोगे कि नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा while पैरेंथेसिस के अंदर BEG is less than equal to AND. ओके, लिखा सबने? ये जो बना था ना तुमने डायग्राम, ये डायग्राम के नीचे, ये डायग्राम के नीचे लिखोगे कि while BEG is less than equal to AND. और स्टार्टिंग में देखो तुमने BEG और AND की वैल्यू सेट की है ना 0 और 9 ऊपर, Yes. है कि नहीं? तो तुमने while पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया BEG is less than equal to AND. क्लियर? अब while के अंदर तुम्हारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, while के अंदर क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि तुम चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि इफ क्या while के अंदर हम ये दोनों को कंबाइन कर दे क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड डाल के, हाँ सर। है ना? कंबाइन भी कर सकते हैं ना, मगर ऐसा नहीं है इसका सर। प्रोग्राम के अंदर while ही यूज हमने किया है, सिंपल while ही यूज किया है, और फिर हमने उसको कंपेयर किया इफ के साथ। वरना फिर अपना सोल्यूशन और ये थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। सोल्यूशन तो ऑफकोर्स हर प्रोग्राम के मल्टीपल होते हैं, मगर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना हमारे पास, इसीलिए। तो उतना ही रखो फिलहाल के लिए, वो एंड वाला पार्ट ऐड मत करो। ओके, और हम देखेंगे कि इफ कंपैरिजन हम while के अंदर करेंगे, जैसे इधर किया है ना, ये एलिमेंट फाउंड वाला पार्ट, ठीक है? फाइन। सो आप लोगों ने लिखा while inside a parenthesis beginning is less than equal to end, BEG is less than equal to end. हाँ ओके, सर। चलो अभी नीचे हम लोग ना while के अंदर, अभी हमारा while का ब्रेसेस स्टार्ट होगा ना, तो while के ब्रेसेस में पहले हम कंपेयर करेंगे कि if जो हमारा a of mid, if a of mid exactly equals to n है कि नहीं। समझे? समझा सबको? आज हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप लोगों को कितना समझा है। चाहता तो मैं भी अपना कैमरा ऑन करके सब स्टेप लिख सकता था, मगर आज आप लोगों को एनालाइज करना है कि आप लोगों को कितना समझा है। इफ कैसे लिखते हैं, पैरेंथेसिस कैसे लिखते हैं, कंडीशन कैसे लिखते हैं, ये सब आज आप लोगों को समझना है, ठीक है? हाँ सर। लिखा सबने?
while के अंदर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि if a of mid, a of I नहीं होगा वहां पर, a of mid, जो हमने देखो mid कैलकुलेट किया ना, mid का वैल्यू क्या मिला है अपने को स्टार्टिंग में, क्या मिला है 4 ना। तो हम हाँ, कंपेयर कर रहे हैं कि if mid of 4 exactly equals to n है कि नहीं। ओके हाँ सर, क्लियर, ओके। अब समझो ये कंडीशन ट्रू हो गया, एज्यूम करो कि ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो उस केस में क्या प्रिंट करेंगे, स्टेटमेंट पोजीशन सिंपल प्रिंट कर देंगे, सी आउट द वैल्यू इज प्रेजेंट एट पोजीशन, पोजीशन क्या आएगा, मिड, राइट, है ना, यस सर, पोजीशन मिड आएगा, ठीक है, क्योंकि मिड वाले पोजीशन पर है, या फिर मिड +1 प्रिंट कर देंगे अगर नॉर्मल यूजर को डिस्प्ले करना होगा तो, ठीक है, क्लियर, यस ओके। सर, समझो अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम बताओ कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, मुझे बताओ। जितना हमारे पास वैल्यू है, जो वैल्यू अपने को ढूंढना है और जो मिड का वैल्यू है उसके हिसाब से ये कंडीशन ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है, बताओ जरा। सर क्या पूछा आपने? फॉल्स। मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि अभी तक जितना वैल्यू है, बीईजी का वैल्यू है, एंड का वैल्यू है, मिड का वैल्यू है, आप लोगों ने कंडीशन भी चेक किया, वाइल भी स्टेटमेंट लिखा, वो कंडीशन के हिसाब से प्लस ये जो वैल्यू है हमारे पास 10, 14, 19 और जो सर्च करना 31, इसके हिसाब से क्या कंडीशन जो तो आप लोगों ने लिखा इफ का, वो ट्रू है कि फॉल्स है। हमको मिड 4 आया ना सर, हाँ, मिड का वैल्यू 4 आया है, बराबर, तो फिर फॉल्स हो गया ना सर। फॉल्स हो गया ना, राइट, क्योंकि मिड ऑफ 4 में वैल्यू क्या है, आप लोगों ने लिखा है ना, ये ड्रॉ किया है ना, बताओ मिड ऑफ 4 में वैल्यू क्या है, 27 27 तो 31 है नहीं ना, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, राइट, है कि नहीं। अब ये नॉलेज के साथ स्टेप नंबर 3 पढ़ो, ये जो नॉलेज अभी तुम्हें मिला है ना, जो आइडिया मिला है कि कंडीशन फॉल्स है, वो ध्यान में रखते हुए स्टेप नंबर 3 पढ़ो। पढ़ा सबने, स्टेप 3 पढ़ा सबने, करंट हाँ सर, सिचुएशन को ध्यान, ओके ठीक है, इसमें से कुछ चीज समझी होगी, कुछ चीज नहीं समझी होगी, टेंशन मत लो, बहुत ही सिंपल है। नाउ बेस्ड अपॉन द कंडीशन, जो हमारा कंडीशन था इफ वाला, ठीक है, वो फॉल्स हो गया ना, तो एलसीफ आएगा नीचे, राइट, यस सर, राइट ना, ठीक है, तो एलसीफ में तुम्हारा स्टेप नंबर 3 है, ओके। एलसीफ में यू आर कंपेयरिंग, तुम लिखो एलसीफ, एलसीफ के बाद पैरेंथेसिस में लिखो आइटम, आइटम
की जगह पर क्या है तुम्हारा n है, राइट? n ढूंढ रहे हो ना तुम लोग, यस सर। है ना? You are comparing inside the else if whether n is less than the value present at the position mid for a given array A, हाँ सर। right? Okay, so the statement will be something like this. I will repeat the statement for you. It will be else if inside the parenthesis n is less than A of mid. Okay, समझा? हाँ सर। ठीक है? In that case you are assigning the value, you are changing the value of and to mid minus 1. Okay, suppose this else if is true, in that case you are reassigning or changing the value of and as mid minus 1. Okay, ये हो गया तुम्हारा else if. क्लियर? अब समझो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। अब आप लोग बताओ कि आपके जितना रिक्वायरमेंट अभी तक आप लोगों ने जो लिखा है उसके हिसाब से ये जो कंडीशन है ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो, सारे वैल्यू को एनालाइज करो, एन को एनालाइज करो, ए ऑफ मिड के ऊपर क्या वैल्यू है उसको एनालाइज सर करो। तो ये वो का ना एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ना beginning- परफेक्ट, तो फॉल्स है ना अभी भी, राइट? एल्स से भी फॉल्स हो रहा है ना तुम्हारे केस में, हाँ है कि नहीं? तो हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा, तो लिखो एल्स वाला पार्ट। एल्स में कंडीशन की जरूरत नहीं है, बीजी इक्वल्स टू मिड प्लस 1, एल्स बीजी इक्वल्स टू मिड प्लस 1। तो तुम्हारे पास एक पूरा वाला सेट बन क्या गया, है राइट? स्टेप 5 में LOC is equal to null? क्या हो गया? LOC is equal to null मतलब क्या है वो? जीरो, कंफ्यूज मत हो जाओ, जीरो। हाँ ठीक है, मतलब वो मीनिंग क्या बता रहे हो उसमें? अरे ये बता रहा है कि वैल्यू मिला ही नहीं, जैसा हमारे लीनियर सर्च में था। अरे लीनियर सर्च में अगर एलिमेंट फाइंड नहीं होगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए ना। हाँ सर सही है। हाँ ठीक है, चलो ओके। तो तुम्हारा वाइल के अंदर अभी वाइल एंड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? यहाँ पर एल्स के बाद तुम्हारा वाइल एंड होगा। ओके, सो वाइल कंडीशन जो तुम्हारा है बीजी इज लेस देन इक्वल टू एंड, ये कंडीशन के अंदर तुमने सर 3 वो नल मतलब वो बता रहा है ना कि नहीं मिला हमको नहीं ऐसा। मिला। हाँ, ये एल्गोरिदम में ऐसा बता रहा है, प्रोग्राम में थोड़ा अलग तरीका हो जाता है। जैसे हमने सी यूज करके किया था, सी इक्वल टू 0, फिर कंपेयर किया था सी को कि सी 0 ही है कि चेंज हुआ है, याद है लीनियर सर्च? और फिर स्टेटमेंट भी दिखा फिर था देखिए। स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया था ऐसा। ये एल्गोरिदम में सिंपल, हम लोग सिंपल स्टेटमेंट में लिख देते हैं नल या 0 ऐसा, ठीक है? एल्गोरिदम और प्रोग्राम तुम्हारा 80% सेम होता है, 20% थोड़ा सा इधर उधर होता है। ओके, एल्गोरिदम हम लोग लेमैन जो नॉर्मल यूजर, नॉर्मल कोई भी बंदा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखते हैं। प्रोग्रामर एल्गोरिदम में से जिस्ट निकालता है, लॉजिक निकालता है और अपने हिसाब से प्रोग्राम लिखता है। क्लियर है? ओके यस सर। ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास क्या क्या स्टेटमेंट्स है? तुम्हारे पास स्टेटमेंट है वाइल के अंदर तीन स्टेटमेंट्स है, दैट इज इफ, एल्स इफ एंड एल्स। क्लियर है ना? इफ के अंदर तुम लोग कंपेयर कर रहे हो कि डेटा प्रेजेंट है कि नहीं, ओके, वो पर्टिकुलर एन प्रेजेंट है कि नहीं ए ऑफ मिड पे। एल्स इफ में तुम ये देख रहे हो कि जो भी वैल्यू प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है? पहले वाले पार्ट में प्रेजेंट है कि सेकंड वाले पार्ट में प्रेजेंट, ठीक है? और एल्स में सेम चीज वही आप लोग देख रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो आप लोगों के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम के हिसाब से जो वैल्यू है 31 वो सेकंड हाफ में कि फर्स्ट हाफ में? सेकंड हाफ में, बराबर। तो इसीलिए आप लोगों का एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है? और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होने की वजह से लॉजिकली क्या चेंज होना चाहिए? बीईजी का वैल्यू, राइट? क्योंकि अभी सेकंड हाफ में अपने को सर्च करना है। क्या एंड चेंज होना चाहिए? जो स्टार्टिंग में हमने एंड लिया था, स्टार्टिंग में बीईजी क्या लिया था? स्टार्टिंग में बीईजी क्या था जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्टिंग में बीच 0 था, अभी सर 0 था, वेरी गुड। और 5 हो एंड क्या था?
और Nine. एंड क्या था 9। परफेक्ट। सो अब जो एलिमेंट हम सर्च करना चाह रहे हो सेकंड हाफ में है, तो लॉजिकली क्या चेंज होना चाहिए, बीजी का वैल्यू, Yes, है sir. ना, है ना। तो बीजी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वाला वैल्यू ना। मिड का वैल्यू क्या था, हाँ सर. मिड का वैल्यू क्या था, अरे बोलो, आपने बुक में लिखा है यार, इतना क्या टाइम Four, लग रहा है four. आपको। 4 बराबर। तो बीजी का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 5, राइट, 5 होगा. है ना। तो इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा है बीजी इक्वल्स टू मिड प्लस 1। क्लियर, Yes, sir. समझा। बीजी इक्वल्स टू मिड प्लस 1 क्यों लिखा है। समझो, एज्यूम करो कि जो तुम एलिमेंट सर्च कर रहे थे 19 है, ठीक है। एज्यूम करो कि जो एलिमेंट आप लोग सर्च कर रहे हो n वो 19 है, तो उस केस में तुम्हारा कौन सा पार्ट ट्रू हो जाएगा, एलसिफ। मिड -1। तो मिड -1 एंड की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि अभी फर्स्ट हाफ में है ना, तो बिगिनिंग का वैल्यू बीजी 0 ही रहेगा, और एंड का वैल्यू चेंज हो जाएगा मिड -1 4, तो सॉरी 3। समझे, समझ रहा है, कंपेयर कर पा रहे हो। Yes, ये sir. फर्स्ट हाफ होगा तो कैसे होगा, सेकंड हाफ होगा तो कैसे होगा, कौन चेंज होगा कौन नहीं होगा, समझ में आ रहा है। हाँ सर. ये इमेजिनेशन है, ठीक है। प्रोग्रामिंग तो 90% इमेजिनेशन ही होता है, ओके। हर चीज थोड़ा थोड़ा लिख लिख के समझना पड़ता है, थोड़ा एज्यूम करना पड़ता है कि कैसे कौन सी सिचुएशन पे क्या पार्ट होगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एलसीफ में, एल्स में ई एन डी मिड -1 क्यों हो रहा है, बीईजी मिड +1 क्यों हो रहा है, सबको क्लियर है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर एन है वो फर्स्ट हाफ में बिलोंग करता है कि सेकंड हाफ में बिलोंग करता है, तो कंपेयर करने के लिए हमने ए ऑफ मिड का यूज किया। समझ गए। तो ए ऑफ मिड पे क्या था अपना, ए ऑफ 4 पे क्या वैल्यू था, क्या वैल्यू है ए ऑफ 4 पे, अरे बोलो। 27. 27। तो हम लोग 27 को कंपेयर कर रहे हैं ना, जो एलिमेंट सर्च करना है एन, राइट। एन क्या सर्च करना है 31, तो हमने इधर एलसीफ में वही कंपेयर किया है ना कि 27 लेस देन है क्या, ठीक है। अगर लेस देन है तो एंड कम करो, अगर ग्रेटर देन है तो बिगनिंग को बढ़ाओ। समझ गए, Yes, sir. क्लियर है। स्टेप 3, ओके। तो हमारा 50% प्रोग्राम हो चुका है, ओके। अब जो हमारा लूप है ना, वाइल वाला, हाँ ओके। सर. वाइल लूप के अंदर ही अब हमारे पास दो नया वैल्यू मिला ना, बीजी का नया वैल्यू मिला, राइट। बीजी अभी क्या हो चुका है बताओ, 5 है कि नहीं, बीजी 5 हो गया ना, अरे है कि नहीं, बीजी 5 हुआ कि नहीं हुआ है, हाँ सर. राइट ना। बीजी 5 हो गया ना, अभी पहले 0 था मगर अभी 5 हो गया, तो ये अभी वाइल लूप फिर से चेक होगा, है कि नहीं। Yes, sir. तो वाइल लूप जब फिर से चेक होगा तो बीजी 5 इज लेस देन इक्वल टू 9, राइट। एंड तो 9 ही है ना अभी भी, है ना। Yes, sir. तो कंडीशन ट्रू है, तो हमें मिड का नया वैल्यू चाहिए होगा, हाँ. राइट। तो हम लोग जो इन्होंने स्टार्टिंग में मिड कैलकुलेट किया है ना स्टेप 1 में, वो वाला स्टेटमेंट तुम्हारा वाइल के अंदर आ जाएगा इफ स्टेटमेंट के पहले। समझ गए, जो तुमने इफ में कंपेयर किया था ना कि वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, Yes, sir. ए ऑफ मिड एग्जैक्टली इक्वल्स टू एन है कि नहीं, राइट। उसके पहले स्टेटमेंट आ जाएगा मिड इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला बीजी प्लस एन डिवाइडेड बाय 2। तो अब बताओ मिड की वैल्यू क्या होगी, -1 होगा ना सर. हाँ क्या हो जाएगा, End is equal to -1 होगा ना, mid -1. हाँ एंड इज इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। मगर अभी मिड का नया वैल्यू मिलेगा ना कंपेयर करने के लिए, वापस से तो कंपेयर हाँ करना है ना मुझे। तो मिड का नया वैल्यू क्या मिला है, सर, वो दिखाओ ना पुराना वाला स्लाइड. ये रहा। 7 होगा.
तो आपने लिखा नहीं है क्या? आप लोग ये देख के 7 बता रहे हो यार, कुछ भी बता रहे हो तुम लोग मेरे को सीरियसली। अरे आपके पास वैल्यू क्या है, आप लोग डालो ना वो वैल्यू फॉर्मूला में। बीजी का वैल्यू क्या हो गया है? व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ बीजी? 5. 5, very good. What is the value of and? What is the value of and? 8. पता नहीं, कोई तो बोल रहा है उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बाकी लोग तो बोलो। What is the value of and? 9 है ना सर? 9 है, वेरी गुड। तो 5 + 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 7। 7, वेरी गुड। अब तुम इफ के अंदर कंपेयर करोगे ना, इफ a of 7 exactly equals to n है कि नहीं, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो क्या सर a आपको of 7 पहले भी n है 7 क्या? ही बोला था मैंने। 7 ही बोला था, मगर तुम वो फिगर देख के बोल रहे हो कि कैलकुलेट करके बोल रहे हो, मुझे कैसे पता? नहीं, मैं सर इंडेक्स नंबर देखा, दोनों को ऐड करके उसको डिवाइड बाय 2 करके आपको 7 बोला। वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। सब लोगों ने ऐसे ही किया? सब लोगों ने कैलकुलेट करके किया ना? यस सर। ठीक है, परफेक्ट। सो बताओ कंडीशन ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है? वैल्यू तो है आप लोगों के पास। फॉल्स है। फॉल्स है, ठीक है। एलसिफ, एलसिफ ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है? फॉल्स होगा ना सर? वैल्यू है ना आप लोगों के पास? सर एंड इज इक्वल टू मिड -1 होगा ना? हाँ, क्योंकि एलसिफ इस बार ट्रू हो गया है। हाँ सर। समझे, इस बार एलसिफ ट्रू हो गया है क्योंकि जो वैल्यू सर्च करे 31 वो लेस देन है जो ए ऑफ पोजीशन 7 पर अवेलेबल है, दैट इज 35। समझे? तो 31 हमारा 35 से लेस है, राइट? ए ऑफ 7 पे 35 है, राइट? सबने लिखा था ये वैल्यू बुक में? यस सर। हाँ, तो कंडीशन हमारा एलसिफ का ट्रू हो गया। तो एलसिफ का ट्रू होने की वजह से एंड विल बिकम मिड -1। तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, नई वैल्यू एंड की? बोलो बोलो। 8 होगा ना? मिड -1 है भैया, एंड -1 नहीं है। हाँ सर, सॉरी। हाँ बोलो। 7 मिड -1। मिड -1, मिड की वैल्यू क्या है? मिड का 7 है तो 6 हो जाएगा। क्या 6 हो जाएगा? यार अभी का मैथ्स भी सिखाना पड़ेगा मेरे को, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में लेके जाके तुम लोगों को +1 और -1 कैसे करते हैं। ठीक है, तो एंड विल बिकम नहीं सर, व्हाट? वो मैंने एंड -1 पहले सोचा, ऐसा होगा। क्लियर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आराम से जाओ, कॉमन सेंस यूज करो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को इस बार लिखने के लिए दे रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ जानबूझकर, ताकि थोड़ा एक कैसा प्रेशर होता है ना, थोड़ा समझ में आए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो तुमको क्वेश्चन ही दिया जाएगा ना, ये सब तुमको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके फाइन। सो नाउ द वैल्यू ऑफ एंड इज 6 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीईजी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीईजी? सर न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू कहाँ से आएगा भैया? जो अपडेटेड लास्ट वैल्यू क्या था बीजी का? लास्ट अपडेटेड वैल्यू जब फर्स्ट टाइम मेरा लूप एग्जीक्यूट हुआ था तो बीजी का वैल्यू क्या था? 5। वेरी गुड। आप लोग लिखोगे स्टेप बाय स्टेप तो दिखेगा ना। तो बीजी का वैल्यू 5 है, एंड का वैल्यू 6 है। क्लियर? क्लियर, सबको यही मिला है? सबके पास यही है कि कुछ और है? यस सर। वेरी गुड। अब अगेन द व्हाइल लूप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। क्या व्हाइल लूप का कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? जो व्हाइल में आप लोगों ने कंडीशन लिखा है बीजी लेस देन इक्वल टू एंड, इज द कंडीशन ट्रू और फॉल्स?
अरे while का कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, इतना टाइम क्यों लग रहा है यार बताने के लिए? यस नो फॉल्स है ना? कैसे फॉल्स है? बीजी की वैल्यू 5 है, एंड की वैल्यू 6 है। while में तुमने लिखा है बीजी लेस देन इक्वल टू एंड 5 इज लेस देन इक्वल टू 6, राइट? यस सर। तो क्या है कंडीशन, ट्रू है कि फॉल्स यस है? सर। यस सर नहीं, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू। ट्रू है यार। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, आराम से, जल्दबाजी मत करो। तुम अगर सब वैल्यू लिखोगे ना तुमको सब दिखाई देगा उधर आंसर, ठीक है? तो बीजी की वैल्यू है 5, एंड की वैल्यू है 6, वाइल के अंदर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बीजी को एंड के साथ, तो कंडीशन ट्रू है। ओके, कंडीशन ट्रू है तो अंदर वापस से वाइल के अंदर आ जाएगा। हम लोग नया वैल्यू ऑफ मिड कैलकुलेट करेंगे। अब बताओ मिड का वैल्यू क्या है, बोलो। मिड के लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे? बीजी प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। बीजी का वैल्यू है 5, एंड का वैल्यू है 6, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। आंसर बताओ मिड का क्या होता है? 5 हुआ बराबर, क्योंकि 11 डिवाइडेड बाई 2 5 आंसर आएगा तुमको, ठीक है? अब तुम कंपेयर कर रहे हो वापस से, इफ a ऑफ 5 एग्जैक्टली इक्वल्स टू आइटम है कि नहीं, n है कि नहीं, तो क्या n हो रहा है, ट्रू हो रहा है? a ऑफ 5 पे क्या है, a ऑफ 5 के ऊपर क्या है? 31। 31 ट्रू हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ट्रू हो गया ना, तो प्रिंट हो गया ना, तो प्रिंट कर दोगे ना तुम जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा तुमने इफ के अंदर, सी आउट द पोजीशन इज राइट। यस। सिंपल। तो कितने स्टेप में आ गया अपने को आंसर ये, बोलो? लूप हमारा वाइल लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ? 3 बार ना सर? 3 बार एग्जीक्यूट हुआ। पहले 0 और 9 के लिए हुआ था, ठीक है? फिर हमारा बिगिनिंग का वैल्यू चेंज हुआ था, राइट? ओके, बिगिनिंग का चेंज होने की वजह से 6 और 9 के लिए एग्जीक्यूट हुआ था, राइट? फिर जब थर्ड टाइम हुआ तो हमारा एंड का वैल्यू चेंज हुआ, फिर 5 और 6 के लिए एग्जीक्यूट हुआ। समझ रहे हो? ये तीनों तुमने लिखा है, देखो वहां पर पहले 0 और 9 था स्टार्टिंग में, तो वाइल लूप 0 और 9 को कंपेयर करके एग्जीक्यूट हुआ था। ओके, जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ था तो एंड की वैल्यू चेंज हो गई थी, सॉरी, जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ था तो बिगिनिंग की वैल्यू चेंज हो गई थी, राइट? बिगिनिंग की वैल्यू अपडेट हो गई थी फ्रॉम 0 टू 9 और फ्रॉम 0 टू 5, है कि नहीं? हाँ सर। है ना? फिर वो 5 और 9 को कंपेयर करने के लिए सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट हुआ था वाइल लूप, जिसके अंदर बिगिनिंग और एंड 5 और 9 था। ओके, उसके बाद तुम्हारा एंड का वैल्यू चेंज हुआ था 6। ओके, फिर 5 और 6 के लिए लूप एग्जीक्यूट हुआ और फाइनली तुम्हें आंसर मिड के हिसाब से मिल गया। तो 3 बार लूप एग्जीक्यूट हुआ, थर्ड टाइम तुम्हें सक्सेसफुल आंसर मिल गया। नॉर्मल अगर लीनियर एरे करते तो कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होता 31 के लिए? नॉर्मल अगर लीनियर एरे करते, लीनियर सर्च करते तो कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होता? अरे लीनियर एरे हुआ ना अपना, लीनियर सर्च हुआ ना, तो अगर मुझे 31 सर्च करना है इस पर्टिकुलर एरे के अंदर तो कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होता मेरा फॉर वाला? किसी ने आंसर तो लिखा है 6 टाइम्स। आप लोग इतने ब्लैंक क्यों हो? मैं बराबर से नहीं बता पा रहा हूँ क्या? नहीं क्या आप सर, लोग ऐसा इमेजिन कुछ नहीं कर नहीं पा है। रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, सब नया है मेरे ख्याल से, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा कि सब एकदम नया नया वो अचानक से सब नोट्स आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा गो थ्रू थोड़ा करना कंफ्यूज हो रहा है। पड़ेगा सर। हाँ, ऑल ऑफ ए ऐसा सडन मैं याद क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना तो ब्लैंक हो जा रहे हो, और कुछ नहीं, बाकी है सर, सिंपल। याद नहीं है थोड़ा। ओके, तो अगर हम लोग लीनियर एरे के हिसाब से, लीनियर सर्च के हिसाब से अगर ये प्रोग्राम करते हैं विद द सेम इनपुट एंड इफ वी वर ट्राइंग टू सर्च फॉर 31 वैल्यू, इन दैट केस द फॉर लूप will be executed 6 times.
Okay, but with the help of binary search the same value is found only using 3 steps. Almost half हो गया, right? तो वही जो फॉर्मूला लिखा था ना वही था वो, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा था ना log n, पता नहीं क्या लिखा था ये, ठीक है, log n डिवाइडेड बाय 2, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया ना. नॉर्मली 6 ये पर्टिकुलर इनपुट के लिए 6 टाइम्स एग्जीक्यूट होता, मगर ये सेम इनपुट और सेम वैल्यू के लिए 3 टाइम्स में आ गया आंसर. समझ गए? क्लियर है? तो ये तुम्हारा एल्गोरिदम है. स्टेप नंबर 4 में यही हो रहा है, फिर से हम लोग मिड का वैल्यू कैलकुलेट करें जो तुमने व्हाइल लूप के अंदर कैलकुलेट किया था, और तुम लोग 3 और 4 स्टेप को रिपीट करते जा रहे हो, ठीक है. और जो स्टेप नंबर 5 है वो हमने स्टेप 3 के अंदर ही यूज कर लिया था, है ना? है कि नहीं? हाँ सर. और फाइनली फिर अगर वैल्यू नहीं मिला तो हम लोग नल डिस्प्ले करते रहते या फिर 0 डिस्प्ले करते, ठीक है. तो अभी ये सेम चीज अपने दिमाग में रखते हुए अब ये जो डायग्राम्स है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. ओके, फॉर अ बाइनरी सर्च टू वर्क इट इज मैंडेटरी फॉर द टारगेट एरे टू बी सॉर्टेड. वी शैल लर्न द प्रोसेस ऑफ बाइनरी सर्च विद अ पिक्टोरियल एग्जांपल. ये सब पिक्चर्स है, ठीक है. पिक्चर्स का एग्जांपल देख करके हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं. The following is our sorted array. ये हमारा sorted array है 10, 14, 19, ठीक है, 26, 27, 31. Let us assume that we want to search the location of value 31 using the binary search. Okay, मेरी आवाज सबको आ रही है? Everyone? Yes sir. ठीक है. Next picture, how the binary search works. So first we shall ओके तो फॉर्मूला यूज करके हम हाफ वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. फर्स्ट वी शैल डिटरमाइन हाफ ऑफ द एरे यूजिंग दिस. ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा, ठीक है. तो देखने की वजह से अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मिड इक्वल्स टू हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2 है, राइट. ये तो अभी आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया ना, बुक के अंदर लिखा ना, तो अभी तो फॉर्मूला एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट? है कि नहीं? यस, नो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो. यस सर. हाँ ठीक है, ओके. तो आप लोगों ने जो बुक में किया है वो इसी को हम लोग थ्योरी में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है. तो हमें वैल्यू मिल गया 4 को फिर हमने कंपेयर किया, ठीक है. तो वैल्यू था 27 पोजीशन 4 पे. सो नाउ वी कंपेयर द वैल्यू स्टोर्ड एट पोजीशन 4 विद द वैल्यू सर्च. तो जो वैल्यू सर्च है 31 है. We find that the value at position 4 is 27, which is not a match as the value is greater than 27. We have a sorted array, so we also know that the target element must be in the upper position of the array. तो ये जो upper position है यानी जो extra ये जो value है उस position के ऊपर, इस position के ऊपर value है, right? ये जो second half है उधर अपना value मिलेगा. ओके, सही ना? है कि नहीं? यस और नो? यस सर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. वी चेंज अवर लो. तो हमारा जो वैल्यू है ना लो यानी बिगिनिंग को हम चेंज कर रहे हैं मिड प्लस 1 से, राइट. हमने वही किया था ना, आप लोगों ने भी वही किया था, राइट. एल्स इफ हमारा ट्रू हो गया था, ट्रू होने की वजह से आप लोगों का बीजी का वैल्यू चेंज हो गया था, हाँ सर. है कि नहीं? है ना. तो बीजी इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो गया था, 5 हो गया था. तो 5 यूज करके फिर हमने नया मिड कैलकुलेट किया था जो हमें 7 मिला था, राइट. नाउ आवर न्यू मिड इज 7. We compare the value stored at 7 which is our target value with our target value 31, ठीक है. तो हमने कंपेयर 7 को कंपेयर किया 31 से. ओके, सो वैल्यू ये आ गया हमारा, ठीक है. 7 आ गया, वैल्यू 31 है 7 पोजीशन के ऊपर. सो द वैल्यू स्टोर्ड एट 7 इज नॉट ए मैच एंड इट इज मोर देन. तो ये जो वैल्यू है वो मोर देन है. तो हमारा जो सेकंड वैल्यू है जो 31 हमको फाइंड आउट करना है वो लोअर हाफ में रहेगा यानी इन दोनों के बीच में रहेगा, डेट इज 31 एंड 30. तो आप लोग देख सकते हो कि पहले स्टार्टिंग में पूरा 10 वैल्यू था, जैसे ही फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ तो फर्स्ट हाफ वैल्यू इग्नोर हो गई, है ना.
0 से लेकर 4 तक वैल्यू इग्नोर हो गया क्योंकि वो अभी हम यूज ही नहीं करने वाले। जब एक बार और लूप एग्जीक्यूट हुआ तो बाकी का वैल्यू इग्नोर हो गया, दैट इज 35, 42 एंड 44। समझ रहे हैं ना? इसलिए देखो उसको हाईलाइट नहीं किया, उसको ब्लर कर दिया, क्योंकि वो सब वैल्यूज अभी इग्नोर हो रही है क्योंकि वो वैल्यू का यूज ही नहीं है। समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है। फिर फाइनली जब लास्ट अपना थर्ड टाइम लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस केस में 5 प्लस लो के हिसाब से तुम्हें वैल्यू परफेक्टली मिल रही है 11। ठीक है, 5.5 तुम्हारा आया था। ठीक है, तो 5.5 के हिसाब से तुम्हारा बेड का वैल्यू आया था 5, और 5 के केस में तुम्हारा वैल्यू मैच हो गया और फाइनली तुम्हें वैल्यू मिल गया। तो हमारा 3 टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ और वैल्यू हमें मिल गया 31। सिंपल। तो इस तरीके से तुम एग्जाम्पल दे सकते हो अगर एग्जाम में भी पूछा तो, थ्योरी पेपर में। समझ गए? क्लियर है? बाइनरी सर्च कैसे काम करता है क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ये प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मगर ये प्रोग्राम का मैं आप लोगों को नोट्स शेयर कर दूंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये प्रोग्राम को एक बार आप लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है उसको समझो, और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग कोशिश करना कि कोई समझा सको या मैं फटाफट समझा दूंगा तो एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ओके सर। ओके। फिर फाइनली लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का डिफरेंस है तो थ्योरी है तो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से हमारा पॉइंटर एरे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ तो लगा मैं आप लोगों को नोट्स शेयर कर दूंगा आज। फाइन, क्योंकि अभी टाइम अप हो चुका है, आप लोगों का कुछ और लेक्चर वगैरह होगा तो इसलिए एंड करते हैं। ठीक है, फाइन, ओके, चलो फिर बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। यस सर।